Yes, good morning, students. We are going to start after Unit 1, the Unit 2, that is the quantum theory. Quantum theory means the theory given by the scientist related to the particles, atoms, which are known to be the packets of energy. Means they have energy, and these energy is used for our quantum theory, that is the theory of particles. Quantum mechanics is a fundamental theory in physics. It's a topic of physics and the scientists give it. It is the theory that provides a description of the physical properties of nature at the scale of atoms and subatomic particles. मतलब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है या फिजिक्स की वो थ्योरी है दैट प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हमारे एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. देखो हमारी जितनी वेव्स होती हैं, वेदर इट इज अ साउंड वेव, लाइट वेव, वट एवर वेव इट इज, it has some physical properties, and these properties are the basis of atoms and subatomic particles. And all these waves have some level of energy in it, and the study of this energy in the atoms and subatomic particles is called the quantum mechanics or the quantum physics. It is the foundation of all quantum physics, including quantum chemistry, means the chemistry of the study of atoms which have energy, quantum field theory, quantum technology, and quantum information science. Everywhere you will see that there is a word quantum. Quantum means some particles which are called the packets of energy. It is the physics, means the quantum physics or the quantum mechanics. It is the physics that explains how everything works. Means whatever going on in our surrounding. मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, लाइट आ रही है, ये जितना ये वेव मोशन, वट एवर थिंग्स, सिग्नल्स जाते हैं. सिग्नल्स कैसे होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. सिग्नल मूव्स, साइनोसाइडल वेव्स, कोसाइनोसाइडल वेव्स. तो सिग्नल मूव्स from one point to another. Our sound waves moves from one point to another. What is this? This is all about the packets of energy, and that physics is called the quantum physics. So it is the physics that explain how everything works that going on around us. The best description we have of the nature of the particles that make up matter and the forces with which they interact. What is the matter? Matter means all these solid waves surrounding us. सब हमारे आसपास जितनी चीजें हैं वो सब एक मैटर है, और वो मैटर में क्या है? एक पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल्स क्या है, उनमें क्या एनर्जी है, हाउ दे बिहेव, दैट इज द क्वांटम. Means the packets of light and energy. It characterizes simple things such as how the position or momentum of a single particle or a group of few particles changes over time. Means what this physics tells? This physics tells कि जितने हमारे आसपास ये चीजें हैं जो पार्टिकल से बनी है, वो कुछ सिंगल पार्टिकल या बहुत सारे पार्टिकल्स ये टाइम के साथ कैसे अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कैसे अपना मोमेंटम होता है, किसी चीज का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मतलब कैसे वो मूव करके अपनी पोजीशन चेंज करता है. दैट इज ऑल अबाउट द क्वांटम फिजिक्स. Quantum physics governs the way the universe behaves at the scale of atoms, electrons, photons. Photons क्या होते हैं? Photons means the packets of energy. एनर्जी के बंडल वो होते हैं photons. क्वांटम फिजिक्स कहती है ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है ये मैटर से बना है, और उस मैटर में क्या है? एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स, all these, and how they behave, what are how, मतलब by which velocity they move, in which configuration they move, किस वेव के थ्रू मूव करते हैं. इट इज अ हाउ इट periodically works. Niels Bohr and Max Planck are two of the founding fathers of quantum theory.
These are the two scientists who first of all given this quantum theory कि जितनी चीजें हैं हमारे आसपास सब एटम्स और पार्टिकल्स की बनी है और उन सब में एक एनर्जी है उस और ये सब एटम्स एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी फॉर्म शो करते हैं और इस पैकेट्स ऑफ एनर्जी के थ्रू ये वेव्स ट्रेवल करती हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम थ्योरी. Each received a Nobel Prize in Physics for their work on quanta. Quanta means energy packet. Einstein is considered the third founder of quantum theory because he described light as quanta in his theory of photoelectric effect. देखो आइंस्टाइन ने लाइट का दिया था जबकि नील बोहर्स मैक्स प्लैंक ने दिया था वेव का कि हमारे हम जो बोलते हैं फॉर एग्जांपल साउंड वेव इट आल्सो कंटेन्स द एनर्जी पैकेट्स. और आइंस्टाइन ने कहा था जो लाइट आती है फॉर एग्जांपल एक बल्ब है कहीं से भी एक लाइट आ रही है light is also form of एनर्जी पैकेट्स जिसकी वजह से लाइट मूव करती है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है उसके अंदर एटम्स होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन सब में एक एनर्जी होती है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा एंड दैट इज द क्वांटम थ्योरी. और आइंस्टाइन ने क्या दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ energy protons and photons. So that is given by the Einstein and they have given the Nobel Prize for their quantum theory. Yes, now need and origin of quantum concept. Yes, see, quantum mechanics was initially invented because classical mechanics, thermodynamics and electrodynamics provided no means to explain the property of atoms, electrons and electromagnetic radiation. क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली क्यों सामने आई थी क्योंकि जो हम नॉर्मली क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े थे मैकेनिक्स मींस द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन द thermodynamics means the how the energy is transferred from one material to another how the energy is transferred from hot body to cold body from cold body to hot body. Electrodynamics डायनामिक्स होता है द मूवमेंट ऑफ थिंग्स चीजों का चलना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इस सब से हमें कुछ नहीं पता लग रहा था व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स मूव वेयर फ्रॉम दीज थिंग्स प्रोवाइड द एनर्जी कहाँ से इनमें एनर्जी आती है कि ये चीजें मूव करती हैं. Electromagnetic radiations means the radiations which shows the both property of electromagnetism. Electricity और magnetic की दोनों properties show करती हैं. That is called as electromagnetic radiations. आपने बहुत ज्यादा ये सुना होगा कि सन की रेस से रेडिएशंस आती हैं. रेडिएशंस मतलब किरणें. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं कोई भी ऐसी रेडिएशंस विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ. Furthermore, it became clear after the introduction of Schrodinger's equation and the quantization of Maxwell's equations that we cannot explain any physical property of matter and radiation without the use of quantum theory. There is a scientist, you will further study in this chapter about the Schrodinger's wave equation. साइंटिस्ट श्रोडिंजर ने और मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दी थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वी कैन नॉट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एंड रेडिएशंस फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ ब्लैक क्लॉथ you will and put a bulb over it you will find some radiations from the cloth comes to you. जी साउंड वेव ट्रेवल करती है लाइट वेव ट्रेवल करती है तो उसमें से रेडिएशंस आती है. तो इन सब को कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऑल दीज आर एक्सप्लेन विद द यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी कि ये सब चीजें जो रेडिएशंस दे रही है इनमें कहीं ना कहीं कोई एनर्जी है और वो एनर्जी क्वांटम थ्योरी है. तो मतलब अल्टीमेटली व्हाट वी कंक्लूड दैट इज अ क्वांटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल आइडेंटिटी फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन एन इंटरेक्शन. This means that the magnitude of the physical property can take on any discrete values consisting of integer multiples of 1 quantum. कि किसी भी एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी समझ पढ़नी है तो हमें सबसे पहले उसका सबसे छोटा यूनिट पढ़ना पड़ेगा क्वांटम. और जितना बड़ा मटेरियल जितना बड़ा मैटर उसमें उतने ज्यादा क्वांटम होंगे दैट इज द इंटीगर मल्टीपल्स ऑफ 1 क्वांटम.
lakh, 2 lakh, but basically the smallest unit is 1 quantum, 1 energy packet. In chemistry and physics, quantum refers to a single packet of matter or energy. In practical use, it refers to the minimum amount of energy required for a change or the minimum value of any physical property in an interaction. मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो क्वांटम थ्योरी का मतलब है कि किसी भी मैटर के एक एटम या एक पैकेट में जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स क्वांटम energy, means the energy produced in its quantum. Yes. Now comes the topic of concept of wave particle duality. Wave particle duality is the concept in quantum mechanics that every particle, see, that every particle or quantum identity may be described as a particle or a wave. कि कोई भी लाइट एनर्जी है या वेव एनर्जी है या वेव साउंड है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ तो इट्स अ साउंड वेव। तो कोई भी पार्टिकल या क्वांटम होता है वो या तो एक वेव होता है या एक सिंगल पार्टिकल होता है। Wave particle duality, possession by physical identities such as light and electrons of both wave-like and particle-like characteristics. तो वेव पार्टिकल डुअलिटी यही था कि जो हम हमारी कोई भी वेव ट्रेवल करती है उसको आप पार्टिकल फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हो और वेव फॉर्म में भी। वेव लाइक साइनोसाइडल वेव, कोसाइनोसाइडल वेव, हमारी जैसे लाइट वेव आती है, हमारी साउंड वेव आती है। और अगर हम सिंगल पार्टिकल में करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट वेव, light is a concept which has a number of particles of energy. On the basis of experimental evidence, German physicist Albert Einstein first showed that light, which had been considered a form of electromagnetic waves, must also be thought of as particle-like localized in packets of discrete energy. एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जैसे अगर किसी बल्ब से या किसी लाइट सोर्स से लाइट आती है तो उसको आप वेव भी कह सकते हो और उसको आप एक पार्टिकल भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल श्रोडिंजर ने और मैक्सवेल ने कहा था कि दिस इज कंसिडर्ड एज अ साउंड वेव, दे लाइट ये एक वेव है, एक तरंगे हैं जो जा रही हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर वेव्स, और वेव्स भी कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच शोज द बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ electromagnetism, electric and magnetic, but it is also considered to be as a particle like localized in packets of discrete energy. Discrete मतलब इनके अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी है जिसकी वजह से ये मूव करती है, कोई ताकत है, कोई एनर्जी है। Dualities of electrons means that electrons behaves as both particles and waves. जितने electrons हैं, protons हैं, they all behave as both particles and waves. French physicist Louis de Broglie proposed 1924 that electrons and other discrete bits of matter, which until then had been conceived only as material particles, also have wave properties such wavelength and frequency. कि जितने ये लाइट के पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सिर्फ एक वेव नहीं है, इनके अंदर ये सिर्फ एक पार्टिकल्स नहीं है, ये वेव भी है। और इट आल्सो शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव लाइक वेवलेंथ। देखो एक वेव की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, उसका टाइम पीरियड। तो फ्रेंच फिजिस्ट लुइस डी ब्रॉगली ने 1924 में कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है और अदर डिस्क्रीट बिट्स ऑफ मैटर, मतलब एटम, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सिर्फ वेव्स नहीं है, ये पार्टिकल्स भी हैं। और पार्टिकल्स के साथ साथ वेव्स की प्रॉपर्टी भी प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यस। That is, the waves can be in the group and such groups are called wave packets. जितना हम कंसेप्ट वेव का स्टडी करते हैं, these waves, हम ये वेव्स किस में स्टडी करते हैं, these waves are in the groups, बड़ी सारी वेव्स ट्रेवल करती हैं ग्रुप में, and such groups are called wave packets. So the velocity with which a wave packet travels is called the group velocity. देखो हमारी अब साउंड वेव गई, साउंड वेव इज नॉट अ सिंगल वेव, ये एक पूरे ग्रुप में मूव करती है और इस ग्रुप को कहते हैं ग्रुप वेव पैकेट्स। और जिस वेलोसिटी से ये ग्रुप मूव करता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रुप वेलोसिटी।
The velocity with which the face of a wave travels is called phase velocity. मतलब अब आपके पास दो कंसेप्ट आए, दैट इज द फेस वेलोसिटी एंड द ग्रुप वेलोसिटी. ग्रुप वेलोसिटी का मतलब है जितने मैटर के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब एक पैकेट्स में मूव करते हैं, दे आर कॉल्ड वेव पैकेट्स. और ये वेव पैकेट्स जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी. और मूव करते हुए जिस रेशो से इनका फेस चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज द फेस वेलोसिटी. The phase velocity of a wave is rate at which the wave propagates in some medium. फेस वेलोसिटी का मतलब है कि मीडियम, मीडियम का मतलब जरूरी नहीं है कि वेव ऑलवेज ट्रेवल्स इन वैक्यूम और वेव ऑलवेज ट्रेवल्स इन एयर. वेव आल्सो ट्रेवल्स इन अदर मीडियम, फॉर एग्जांपल इन वाटर. इन वेव आल्सो ट्रेवल्स इन वाटर, एनी अदर मटेरियल, कोई भी लिक्विड. ठीक है, देखो वेव किस किस में ट्रेवल कर सकती है. वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम, एयर, एनी लिक्विड, वाटर. तो जिस वेलोसिटी से वो उस मीडियम में ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड एज फेस वेलोसिटी. दिस इज द वे वेलोसिटी एट विच द फेस ऑफ एनी वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द वेव ट्रेवल. फेस का मतलब है उसका एक फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट. जैसे अगर वो साइनोसाइडल वेव है तो एक पीरियोडिक उसका कितनी एक पीरियोडिक कंप्लीट होने में उसको कितनी वेलोसिटी लगती है और कितना फेस चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फेस वेलोसिटी. For such a component, any given phase of the wave will appear to travel at the phase velocity. Wave velocity usually means the phase velocity, the rate at which the phase travels in the space. So it implies that the wave is carrying energy, so the wave velocity is also the group velocity. मतलब इससे हमें क्लियर हो गया कि जब एक वेव मूव करती है तो वो फेस भी चेंज करती है. और जिस वेलोसिटी से, और एक सिंगल वेव नहीं ट्रेवल करती, एक ग्रुप ट्रेवल करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इट्स ग्रुप वेलोसिटी. Waves can be in groups, and such waves or groups are called wave packet. Now, the velocity in with which the phase of a wave travels is called its phase velocity, जिससे उसका फेस चेंज होता रहता है. फेस का मतलब है कभी वो 180 डिग्री अबव, कभी 180 डिग्री नीचे, कभी 90 डिग्री अबव, कभी 90 डिग्री नीचे. तो and the relation between group velocity and phase velocity are proportional, means they are directly proportional to each other. If one thing increase, the other thing automatically increase. And what is the relation between group velocity and phase velocity is Vg is equal to Vp plus k times dVp upon dk, where Vg is the group velocity, Vp is the phase velocity, and k is the angular wave number. What is angular wave number? Angular wave number का मतलब है कि एक ऐसा कांस्टेंट जो इनके बीच में डायरेक्टली रिलेशन बताता है. और dvp by dk is the rate of change of phase velocity with respect to that number. Now, the group velocity is directly proportional to phase velocity. जो ग्रुप वेलोसिटी है वो फेस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, which means अगर ग्रुप वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो फेस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज, एंड इफ द फेस वेलोसिटी इंक्रीज द ग्रुप वेलोसिटी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. Phase velocity is the propagation velocity of the equiphase wave surface of a single sinusoidal wave along a transmission line, and the group velocity is the propagation velocity and envelope of two sinusoidal waves with a slight difference in frequency superimposed. देखो फेस वेलोसिटी का मतलब है जब एक सिंगल साइन वेव ट्रेवल करती है तो वो इक्वल फेस में ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड एज फेस वेलोसिटी. लेकिन ग्रुप वेलोसिटी का मतलब है जब टू वेव्स इकट्ठे ट्रेवल करती है तो लिटिल बिट उनके फेस में चेंज होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी. Group velocity is the velocity of electromagnetic waves in the waveguide, whereas ग्रुप वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ग्रुप्स में चलना उस मीडियम में. ग्रुप वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस. सी दिस इज द फिगर विच इज शोइंग द ग्रुप एंड फेस वेलोसिटी. देखो ये है ग्रुप वेलोसिटी, बड़ी सारी वेव्स इकट्ठे चल रही हैं, दिस इज कॉल्ड फेस वेलोसिटी. ये देखो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस यू नो वेरी वेल, दिस इज द साइनोसाइडल वेव, साइन वेव. दिस इज आल्सो द साइन वेव. कहीं वो फास्ट चल रही है मींस द फ्रीक्वेंसी पीरियड इज very large, number of sine waves per second is very much, here the number is very less. This is also a type of group and phase velocity.
Okay. So in this topic, you have studied the wave, the quantum, the basics of wave and quantum, how they vary, what is group velocity, what is phase velocity, and what is the need of quantum and quantum physics and quantum mechanics. Thank you.